So good morning, everyone. We are going to start with new chapter, electrochemistry. Actually, electrochemistry is, you can say, a branch of chemistry that deals with conversion of chemical energy into electrical energy, or vice versa. Means we can convert chemical energy of any spontaneous chemical reaction to produce electricity, and also we can use electricity to carry out non-spontaneous chemical reactions. So this first 3-4 lines is actually about the introduction of electrochemistry. What does it mean? Okay. So basically, electrochemistry is, you can say, useful in डेली लाइफ एज वेल. जितनी भी आप बेटा बैटरीज यूज करते हो, राइट, टू नाउ डेज, तो यू आर यूजिंग लैपटॉप्स एंड मोबाइल फोन्स, तो उनमें जो बैटरीज हैं दे आर ऑल्सो लाइक वर्किंग ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. उनमें कुछ केमिकल्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं. चार्जेबल बैटरीज, नॉन चार्जेबल बैटरीज, वैरायटी ऑफ बैटरीज. आप लोग जो पुराने टाइम में सेल्स आते थे, देवर लाइक नॉन चार्जेबल, जिसको आप वापस चार्ज नहीं कर सकते. बट नाउ डेज यू हैव बैटरीज विच कैन बी चार्ज्ड. So variety of cells you can see around yourself, and functioning of these cells is based on actually electrochemistry. So actually in electrochemistry there are two types of cells that we need to discuss in this chapter. एक है आपके पास electrochemical, electrochemical cells. Electrochemical cells are the cells in which you can say chemical energy is converted into electrical energy. एक कोई भी spontaneous chemical reaction की chemical energy को use कर रहे हैं हम, convert उसको मतलब convert कर रहे हैं electricity produce करने के लिए. ठीक है, तो that type of cells are known as electrochemical cells. electrochemical cells के अंदर जितनी भी batteries आप अपने around देखते हो, ड्राई सेल जो हम नॉर्मली टॉयज वगैरह में यूज करते हैं या बहुत क्लॉक्स में यूज करते हैं, दीज काइंड ऑफ सेल्स, और मोबाइल फोन बैटरीज, और इवन आपके इन्वर्टर बैटरीज हैं, these are actually a type of electrochemical cells. और सेकेंड टाइप की जो सेल्स हम यूज कर रहे हैं, that is in this chapter we will discuss these two type of cells, electrolytic cells. Electrochemical cells basically deal with conversion of chemical energy to electrical energy. मतलब आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को यूज करके उसकी केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. Whereas in case of electrolytic cells, electrolysis आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है. कोई भी ऐसी लाइक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस जिसको हम यूज कर सकते हैं, लाइक जो हम अदरवाइज वी कैन नॉट ब्रिंग अबाउट दोज रिएक्शंस, बट वी कैन you can say apply electrical energy in order to produce a kind of chemicals. So electrolytic cells actually convert electrical energy to chemical energy. ठीक है, तो these are two types of cells that we are going to discuss in this chapter. Now I'm going to write two equations. You need to tell me which of them you can think that is a spontaneous reaction. Zinc plus copper sulfate giving, right now I'm writing this equal to sign, zinc sulfate plus copper, and one equation is sodium chloride breaks down
to give sodium metal plus chlorine gas. Yes, can anyone tell which out of these two equations, reactions you can see? First of all, so you need to tell me what are these type of reactions. मतलब आपने कुछ, हमने 11th क्लास में भी डिस्कस किया वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. एक्चुअली दोनों ही केमिकल रिएक्शंस जो आप देख रहे हो, एक डिस्प्लेसमेंट के अंडर आती है, एक डिकम्पोजिशन के अंडर आ रही है, ठीक है. बट अदरवाइज बोथ ऑफ दीज रिएक्शंस बिलोंग टू redox reactions. So very important thing कि हम जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में जो भी रिएक्शंस हम यूज करेंगे वो होंगी यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शंस. रिडॉक्स रिएक्शंस हमने 11th क्लास में पढ़ा है. रिडॉक्स रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस व्हिच इन्वॉल्व simultaneous oxidation as well as reduction. Now you need to tell me which of these two reactions is a kind of spontaneous, जो अपने आप हो सकती है, आपको कोई एक्स्ट्रा बाहर से उस पर फोर्स नहीं लगाना पड़े. Yes, who will tell? Anyone who can tell which out of these two is a spontaneous one? Can या फर्स्ट वन में आपने देखो, एक छोटी क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हो, जिंक मेटल या कोई भी मोर रिएक्टिव मेटल, when it is placed in solution of a less reactive metal, then it starts displacing that particular metal. less reactive metal को वो उसके solution से displace करना start कर देता है, ठीक है. तो एक redox reaction जो होती है, like अगर वो reaction सपोज अपने आप प्रोसीड हो रही है, तो इस रिएक्शन की जो केमिकल एनर्जी है दैट कैन बी यूटिलाइज्ड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ केमिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट विल सी इन दिस चैप्टर. और दूसरी जो रिएक्शन हमने लिखी है बेटा यहाँ पे, सोडियम क्लोराइड इज व्हेन यू कैन से ब्रोकन डाउन टू प्रोड्यूस सोडियम मेटल एंड क्लोरीन गैस. एंड एज यू नो दैट आयनिक कंपाउंड्स, they are formed easily by combination of metals and non-metals, but actually these compounds are, you can say, cannot be broken down easily. आप उसको break down easily नहीं कर सकते. You need to apply certain kind of energy. तो सोडियम क्लोराइड को ब्रेक डाउन करने के लिए आपको उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करना पड़ता है. एंड इफ यू रिमेम्बर, हमने 11th क्लास में वैसे एस ब्लॉक एलिमेंट्स में सोडियम का एक्सट्रैक्शन अदरवाइज थोड़ा बहुत सिलेबस में था, बट वो लास्ट ईयर इट वाज डिलीटेड ड्यू टू, मतलब वो सिलेबस डिलीशन में जो गया था कोविड कंडीशंस की वजह से. तो इन दैट यू विल कम टू नो कि सोडियम मेटल या किसी भी मेटल को, जनरली ये भी आपने पढ़ा हुआ है लोअर क्लासेस में, इवन इन क्लास 10th, की जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, दे कैन बी ऑब्टेन्ड ओनली बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशंस. उनके सॉल्ट सॉल्यूशंस का अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं, देन ओनली we can obtain those metals. तो metals, non-metals, कई ऐसे substances है जिनको आप otherwise extract नहीं कर सकते उनके ores में से without passing electricity through them, because उन reactions का proceed होना, like metals को उनके ores में से separate करना, जो more reactive metals हैं, it's not an easy task. So you need to produce those chemicals by using electricity. ठीक है. तो इन दिस चैप्टर यू विल कम टू नो बोथ ऑफ दीज टाइप ऑफ सेल्स की इलेक्ट्रोलिसिस क्या है और इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स क्या होती हैं, किस तरह से हम उनमें मतलब रिएक्शंस को कैरी करवा सकते हैं जो अदरवाइज रिएक्शंस नॉन स्पॉन्टेनियस है. एंड स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस जनरली डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शंस हैं which can easily be, you can say, brought about in order to produce electricity. ठीक है. So first of all, in this chapter, the first topic is electrochemical cell. Electrochemical cells are those kind of cells which convert chemical energy of a spontaneous redox reaction. If you want to write definition of electrochemical cells, you can note down a kind of cell which convert chemical energy of a spontaneous redox reaction into इलेक्ट्रिकल एनर्जी. क्लियर. अब
ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं इनके कुछ और नेम्स भी हैं, ये देखो यहाँ पर आप अंडरलाइन कर सकते हो इफ यू हैव योर बुक्स, अदरवाइज अगर नोटबुक है तो यू कैन नोट डाउन बिकॉज समवेयर यू कैन see these kind of terms as well. Electrochemical cells are also called galvanic cells or voltaic cells because they are the devices which produce electricity. So the term here is used as voltaic cells or galvanic cell. और एक सबसे पहली जो galvanic cell बनी थी Alexander Volta ने बनाई थी, that was known as Daniell cell. ठीक है, इसका नेम डेनियल सेल के नेम से जो पॉपुलर सेल है उसमें यही केमिकल रिएक्शन यूज होना, अदरवाइज तो वी कैन यूज वेराइटी ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फॉर यू कैन से प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी. जैसे जो हमारे घर में इन्वर्टर बैटरीज हैं, दे आर यूजिंग लेड एंड लेड ऑक्साइड, उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है, बट एक्चुअली दिस इज द सिंपलेस्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विच इज नोन एज डेनियल सेल, विच वाज फर्स्ट developed and constructed by Alexander Volta, साइंटिस्ट का नेम था. तो एक्चुअली इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या है, अगर आप देखो एक जिंक इलेक्ट्रोड को आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रखते हो, सपोज आपने एक ही कंटेनर लिया, उसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया और आपने उसमें जिंक रॉड रख दी, तो यू विल सी दैट जिंक मेटल विल स्टार्ट डिसॉल्विंग, जिंक रॉड धीरे धीरे थिनर होती जाएगी और सॉल्यूशन में आपको कॉपर ब्राउन कलर के पार्टिकल्स की फॉर्म में डिपॉजिट होते हुए मिलेंगे, या तो जिंक रॉड पे डिपॉजिट हो जाएंगे या फिर दे विल सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर. अब इसी रिएक्शन को अगर हम दो अलग अलग कंटेनर में कर लें, हमने क्या किया, इसी एक डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन को टू हाफ्स में कन्वर्ट कर दिया. मींस वी आर यूजिंग हियर जिंक इलेक्ट्रोड बट इट इज नॉट डिप्ड डायरेक्टली इन कॉपर सल्फेट, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट एक ही सोल्यूशन में उसको डिप कर दोगे तो इट विल नॉट बी एबल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. आपको उसको एक सेल में कन्वर्ट करने के लिए दो अलग अलग हाफ सेल्स कंस्ट्रक्ट करनी है. तो हाफ सेल की कंस्ट्रक्शन के लिए हम क्या करते हैं, जिंक या जो भी हम मेटल यूज कर रहे हैं उस मेटल का इलेक्ट्रोड, मतलब एक रॉड ले लिया आपने उस मेटल की और उसको डिप कर दिया उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में, जो एक वाटर सोल्यूबल सॉल्ट लेना है आपने. तो जिंक के केस में यहाँ पे हम ले रहे हैं जिंक सल्फेट सोल्यूशन, तो उसी सॉल्यूशन में आपने डिप कर दिया जिंक रॉड को, एंड यू हैव टेकन अनदर कंटेनर इन विच यू हैव डिप्ड अ कॉपर रॉड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. मींस दोनों सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रोलाइट हमने लिए हैं दोनों के सल्फेट्स हैं और रॉड्स को आपने उन्हीं सॉल्यूशंस में डिप कर दिया. अब बिकॉज अलग अलग हाफ सेल पे लोगे तो ऑब्वियसली दोनों अपना अपना इंडिविजुअल उसमें प्रोसेस चलेगा, बट आपको इसको एक कनेक्ट करना है तो यू विल कनेक्ट दीज टू इलेक्ट्रोड्स. अब ये जो मेटल रोड्स लिए हम इनको इलेक्ट्रोड्स टर्म यूज करते हैं, तो दीज टू इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ कंडक्टिंग वायर, कॉपर वायर से कनेक्ट कर दिया इसको. ठीक है, एंड अभी तो आपने सिर्फ मेटल इलेक्ट्रोड्स ही कनेक्ट किए, बिकॉज आप सॉल्यूशंस भी ले रहे हो इलेक्ट्रोलाइट्स, तो इलेक्ट्रोलाइट्स आर आल्सो टू बी कनेक्टेड, अदरवाइज करंट फ्लो नहीं होगा सर्किट में से. तो इन ऑर्डर टू कंप्लीट द इंटरनल सर्किट, एक्सटर्नली हमने सर्किट को कनेक्ट किया इलेक्ट्रिक वायर से या कंडक्टिंग वायर से, वेयर एज द इंटरनल सर्किट इज टू बी कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ दिस इन्वर्टेड यू ट्यूब. यू शेप की इन्वर्टेड एक ट्यूब है विच इज नोन एज सॉल्ट ब्रिज. का नेम सॉल्ट ब्रिज, ब्रिज का मतलब आपको पता है दो चीजों को कनेक्ट करने का ये काम कर रही है, तो ब्रिज नेम दे दिया. सॉल्ट इसलिए बिकॉज इस ग्लास ट्यूब के अंदर एक अगर अगर जेली टाइप जिलेटिनस मटेरियल फिल होता है और उस जिलेटिनस मटेरियल को एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्ब किया हुआ होता है उसके ऊपर. मतलब इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो इन दोनों हाफ सेल्स में न्यूट्रलिटी तो मेंटेन करेगा, बट उस इलेक्ट्रोलाइट के आयंस इन हाफ सेल्स के सॉल्यूशंस के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट. सबसे पहले तो आप इसमें लाइक व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज एक शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, तो इफ यू वांट टू राइट तो यू कैन मेंशन इट. सॉल्ट ब्रिज इज एन इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब, inverted glass tube filled with agar gelatinous material which contains an inert electrolyte
इनर्ट, इनर्ट का मतलब जिसके आयंस प्रोड्यूस तो होंगे बट दोज आयंस विल नॉट रिएक्ट विद द आयंस प्रोड्यूस्ड इन दीज हाफ सेल्स. तो filled with inert electrolyte like KCl, potassium chloride, or potassium sulfate. In few books you can also find NaClB, but आपके NCERT में KCl ही use हुआ हुआ, तो we'll go with that only, KCl or K2SO4. तो role of salt bridge क्या बेटा? Salt bridge connects the internal circuit, or it completes the internal circuit. Salt bridge completes the internal circuit by connecting solutions of electrolytes, by connecting solutions of electrolytes in separate half cells. And second, एक तो ये कंप्लीट कर रहा है सर्किट को, दूसरा इसका इंपॉर्टेंट रोल क्या है? इट helps to maintain neutrality in both of the half cells. It helps to maintain neutrality in both of the half cells. So let us now see कि इस सेकेंड पॉइंट का क्या मतलब है जो हमने कहा कि ये न्यूट्रलिटी मेंटेन कर रहा है. एक्चुअली व्हाट हैपेंस हियर, ये जिंक रॉड जो आपने जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डिप की हुई है, यहाँ पर क्या होता है, जिंक जो है इट कन्वर्ट्स इनटू जिंक 2 positive ion by losing 2 electrons. क्लियर? कि जिंक जो है वो अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके जिंक 2 पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, ये जिंक की टेंडेंसी अपने आप को ऑक्सीडाइज करने की, और ये जो रिएक्शन हो रही है जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट बाय जिंक मेटल रॉड हियर, दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेशन. अब ये थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवा देती हूँ दोबारा. ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो जिस हाफ सेल में ऑक्सीडेशन प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है, मींस द हाफ सेल इन विच मेटल रॉड इज losing electrons in order to convert metal atoms into metal ions, that half cell is termed as anode. ठीक है, इसको हमने नेम दिया एनोड. और यहाँ पे जो एनोड है बेटा, इट गेट्स नेगेटिवली चार्ज. रीजन, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर जनरेटेड हियर बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन. तो एक चीज आपने बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ याद रखनी है कि कोई भी टाइप की सेल है, वेदर इट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ऑलवेज ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड. एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन नहीं होता. साइन डिफर होते हैं दोनों सेल्स में. जब हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल करेंगे देन विल डिस्कस उसका साइज, वहां पे साइन जो है वो पॉजिटिव होता है. बट इन केस ऑफ अभी हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रहे हैं, हमने ये देखा कि जिंक जो है यहाँ से कन्वर्ट हो रहे हैं जिंक के एटम्स अपने आप जिंक आयंस में, और जब जिंक का एटम जिंक आयन में कन्वर्ट होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी लॉस्ट बाय दैट. अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस इलेक्ट्रोड पे इकट्ठे होते रहते हैं और ये इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज हो जाता है. एंड एज दिस इलेक्ट्रोड इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन, इट इज टर्म्ड एज एनोड. इसको हम नेम दे रहे हैं एनोड बिकॉज जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होता है दैट इलेक्ट्रोड इज नेम्ड एज एनोड. तो एनोड यहाँ पे हुआ नेगेटिवली चार्ज. अब हमने देखा कि बहुत सारे जिंक आयंस यहाँ पर सॉल्यूशन, देखो इलेक्ट्रॉन्स तो बैटरी, ये जो इलेक्ट्रोड है इस पर कलेक्ट होते रहते हैं, बट जिंक आयंस क्या होंगे, आयंस की टेंडेंसी रहती है ना डिसॉल्व होने की. तो दीज जिंक आयंस विल कम इनटू द सॉल्यूशन, और जैसे जैसे वो सॉल्यूशन में जिंक आयंस आते जाएंगे, व्हाट विल हैपन, दिस सॉल्यूशन विल बी मोर एंड मोर पॉजिटिवली चार्ज. तो हमारा यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज क्या काम कर रहा है? अब देखो आप इलेक्ट्रोड पे एक तरह का नेगेटिव पोटेंशियल जनरेट हो रहा है क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं, और सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट होता जाएगा. तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस है एक दूसरे को ओपोज करते रहेंगे कि यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है तो यहाँ पॉजिटिव आ रहा है. तो उस केस में ये बैटरी अच्छे से वर्क नहीं करती. हमें इस सॉल्यूशन में पोटेंशियल डेवलप नहीं होने देना, और उसके लिए हम क्या करेंगे, सॉल्ट ब्रिज का जो काम है, सॉल्ट ब्रिज में हमने लिया है KCl. अब KCl क्या करेगा, ये सॉल्ट ब्रिज यहाँ पे क्लोराइड आयन को डिफ्यूज करता रहेगा इस सॉल्यूशन के अंदर. क्लोराइड आयन जितने भी जिंक आयन प्रोड्यूस हुए सॉल्यूशन में उनको न्यूट्रलाइज करते रहेंगे. जितने जिंक आयंस आ गए इस रॉड के अंदर से
उतने क्लोराइड आयंस इन सॉल्ट ब्रिज से। अगर K2SO4 ले रहे हो तो सल्फेट आयन आ जाएंगे, KCl रखा हुआ सॉल्ट ब्रिज में तो क्लोराइड आयन, मतलब ऑपोजिटली चार्ज आयंस उतने अपने आप आते रहेंगे जो उसको न्यूट्रल करते रहेंगे। इससे क्या होगा, सॉल्यूशन के अंदर कोई भी पोटेंशियल डेवलप नहीं होगा, मतलब होगा भी तो मिनिमाइज रहेगा क्योंकि न्यूट्रल होते जा रहे हैं। अब दूसरे हाफ सेल में क्या हो रहा है बेटा, इन दिस हाफ सेल, जस्ट वेट, in this half cell what we can say, यहाँ पर क्या आपके पास कॉपर। अब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कॉपर मेटल को आपने डिप किया हुआ है, तो हियर व्हाट हैपेंस, कॉपर की जो टेंडेंसी है जिंक के कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन लूज करने से ज्यादा कॉपर की टेंडेंसी रहती है कि जो कॉपर आयंस है, क्योंकि देखो जिंक ने जितने इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस किए वो इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में इस कंडक्टिंग वायर जिससे आपने कनेक्ट किया था दोनों इलेक्ट्रॉन को, यहाँ से ट्रेवल होते हुए इस इलेक्ट्रोड पे आ जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रोड पे क्या होता है, जो सोल्यूशन है उसके अंदर कॉपर आयंस है, कॉपर आयंस ये इलेक्ट्रॉन लूज गेन करेंगे एंड दे विल कन्वर्ट इनटू कॉपर मेटल। तो इस सेकेंड हाफ सेल में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन चल रहा है, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन जिंक ने प्रोड्यूस किए उतने इलेक्ट्रॉन कॉपर आयंस यहाँ पे गेन करते जाएंगे, एंड मोर ऑफ कॉपर आयंस फ्रॉम द सॉल्यूशन विल गेट डिपॉजिटेड ऑन द कॉपर रॉड। ठीक है, क्योंकि जो न्यूट्रल एटम बना वो न्यूट्रल एटम रॉड पे डिपॉजिट होगा, जो आयंस बनेंगे वो सॉल्यूशन में आएंगे। तो आप थोड़े टाइम के बाद क्या देखोगे सेल के अंदर कि जिंक रॉड जो है वो साइज में डिक्रीज होती जाती है, बिकॉज मोर एंड मोर ऑफ जिंक एटम्स विल बी कन्वर्टेड इनटू जिंक आयंस, whereas copper rod will get thickened in size due to deposition of more and more of copper atom। अब देखो सॉल्यूशन में आपने लिया था कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, यहाँ से कॉपर के आयंस जो हैं दे विल डिपॉजिट ऑन दिस कॉपर रॉड, और सॉल्यूशन में कॉपर आयंस कम होते जा रहे हैं और सल्फेट आयंस बढ़ते जा रहे हैं, तो यहाँ एक तरह का नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप होता जाएगा। तो उसको न्यूट्रलाइज करने का काम अगेन सॉल्ट ब्रिज करेगा, ये पोटेशियम आयंस रिलीज करेगा अपने अंदर से, एंड दोस पोटेशियम आयंस विल न्यूट्रलाइज दोज सल्फेट आयंस। ओके, और कॉपर रॉड के ऊपर और ज्यादा से ज्यादा कॉपर मेटल एटम डिपॉजिट होते रहेंगे। तो एज दिस इलेक्ट्रोड वेयर द रिडक्शन इज टेकिंग प्लेस, रिडक्शन होता है ना गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर हो रहा है आपके पास रिडक्शन, एंड द इलेक्ट्रोड वेयर रिडक्शन इज टेकिंग प्लेस इज टर्म्ड एज कैथोड। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, इस चैप्टर में आपको बहुत अच्छे से इनको मेमोराइज करना है, और इसको मेमोराइज करने के लिए एक हिंट है कि वोवल साउंड जो होती है ना इंग्लिश में, एनोड और ए एंड ओ बोथ आर वॉल्स, तो एनोड एंड ऑक्सीडेशन से याद रख सकते हो, कैथोड एंड रिडक्शन दोनों कॉन्सोनेंट टर्म्स, मतलब सी एंड आर दोनों कॉन्सोनेंट टर्म्स है ना, तो उससे आप याद रख सकते हो कैथोड मतलब इलेक्ट्रोड वेयर रिडक्शन इज टेकिंग प्लेस इज टर्म्ड एज कैथोड, whereas electrode where oxidation is taking place is termed as anode। तो कैथोड यहाँ पर होगा पॉजिटिवली चार्ज, बिकॉज यहाँ पर जो कॉपर आयंस है दे आर गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है जिंक से कॉपर सॉल्यूशन, कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ हो रहा है। अब अगर आप इस वायर के बीच में यहाँ कहीं वोल्ट मीटर लगा देते हो, अभी यहाँ शो नहीं हुआ बट अदरवाइज जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसका एक्चुअल सेटअप जो होता है उसमें यहाँ पे एक वोल्ट मीटर और स्विच लगा रहता है। जैसे ही आप उस स्विच ऑन करोगे करंट, जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस फ्रॉम एनोड टू कैथोड, क्योंकि एनोड पे इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो रहे हैं तो दे विल फ्लो फ्रॉम एनोड टूवर्ड्स कैथोड। बट जो करंट का फ्लो है, करंट कन्वेंशनल करंट, आप फिजिक्स में जो शुरू से पढ़ते आ रहे हो कि करंट जो फ्लो होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के ऑपोजिट है, कन्वेंशनली फिजिक्स में इसको लिया हुआ। तो बाय कन्वेंशन द करंट फ्लोज फ्रॉम कैथोड टू एनोड, बट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस फ्रॉम एनोड टू कैथोड। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट आपने याद रखनी है, वन वर्ड क्वेश्चन में किसी भी
सेल को अगर हम डिस्कस करते हैं तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, तो रोल ऑफ सॉल्ट ब्रिज क्या हुआ, एक तो कनेक्ट पूरा इसने सॉल्यूशन को कनेक्ट करके इस पूरे सर्किट को कंप्लीट किया। अगर आप सॉल्ट ब्रिज नहीं लगाओगे, सॉल्यूशन कनेक्टेड नहीं होंगे तो करंट फ्लो नहीं होगा। सेकेंडली, सॉल्ट ब्रिज जो है वो इंटरनल सॉल्यूशन में पोटेंशियल डिफरेंस को डेवलप नहीं होने देता बाय कीपिंग द सॉल्यूशंस न्यूट्रल। ठीक है, half cell in which oxidation is carried out is termed as anode, which is always negatively charged in electrochemical cell, and half cells where reduction is carried out are called cathode, where and those electrodes are always positively charged. Clear? तो अब ये ओवरऑल जो सेल रिएक्शन है, आपने इनको अगर कंबाइन कर दोगे तो यू विल गेट दिस रिएक्शन which is written here, zinc plus copper ions giving zinc 2 positive plus copper if you add these two reactions। और ऐड करते टाइम पे जब भी किसी हाफ सेल, आपको दो हाफ सेल्स की रिएक्शंस दी हुई है, आप दोनों को कंबाइन करके कंप्लीट रिएक्शन बना रहे हो, ऑलवेज रिमेंबर इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इक्वल, जैसे रिडॉक्स रिएक्शन में हमने दो हाफ रिएक्शंस को बैलेंसिंग किया था 11th क्लास में, तो हम इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल करने के लिए एक सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना रिएक्शंस को। तो सेम वे यू नीड टू डू हियर ऑल्सो, कि आपको इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने, और आपको इक्वेशन जो फाइनल इक्वेशन आएगी दैट विल नॉट इन्वॉल्व एनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? तो ये जो गैल्वेनिक सेल है बेटा, दिस गैल्वेनिक सेल और जो डेनियल सेल है, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब ये जो वोल्टेज प्रोवाइड करती है दैट इज 1.1 वोल्ट। मतलब दिस 1.1 वोल्ट इज द EMF ऑफ दिस सेल। EMF होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन these two potential of these two half cells। अब पोटेंशियल क्या होता है एक्चुअली थोड़ा बहुत आप फिजिक्स में पढ़ते आए हो, बट यहाँ हम थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। एक हाफ सेल का पोटेंशियल जिसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, जस्ट राइट द डेफिनेशन, व्हाट इज एन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और हाफ सेल पोटेंशियल, एक हाफ सेल यहाँ पर हम एक इलेक्ट्रोड को कंसिडर कर लें, तो राइट डाउन द टेंडेंसी of an electrode, the tendency of an electrode to get oxidized or reduced, is termed as electrode potential। कि एक हाफ सेल की टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की है या रिड्यूस होने की है, उसको उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। ये एक्टिविटी यहाँ पे दी हुई है शो करने के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आपको कैसे आइडिया लगेगा। एक्चुअली तो जब वोल्ट मीटर लगाओगे यू विल कम टू नो व्हाट इज द वोल्टेज विच इज प्रोवाइडेड बाय दिस बैटरी। और अगर आप 1.1 वोल्ट से लेसर वोल्टेज एक्सटर्नल सर्किट एक लगा देते हो यहाँ पे, तो यू विल सी दैट करंट starts flowing from zinc to copper। और अगर आप एक्सटर्नल सर्किट में एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हो इस बैटरी में, जिसमें एग्जैक्टली 1.1 वोल्ट आपने प्रोवाइड किया एक्सटर्नली, तो कोई फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, क्योंकि बैटरी का अपना पोटेंशियल भी 1.1 वोल्ट है और आप एक्सटर्नली भी उसको 1.1 वोल्ट से कनेक्ट कर रहे हो। बट इफ यू apply external voltage greater than 1.1 volt, you will see that reverse reaction take place, means electron starts flowing from copper to zinc। तो that means इस टाइम पे ये जो सेल है रिवर्स हो गई और अब ये एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल का रोल प्ले करती है। तो here in this chapter we'll come to know how we can convert electrochemical cell into electrolytic cell by अप्लाइंग एक्सटर्नल वोल्टेज। एक्सटर्नल वोल्टेज अगर आप उस सेल के अपने सेल पोटेंशियल से हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगा देते हो, देन यू विल सी दैट द रिएक्शंस गेट इनवर्स्ड, रिवर्स हो जाती है रिएक्शन। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया, रिडक्शन हाफ और ऑक्सीडेशन हाफ क्या है। इन्हीं को हम हाफ सेल्स भी कह सकते हैं, रिडॉक्स कपल्स भी कहते हैं, सेम थिंग।
either you can use the term half cell or redox couple. अब इस एक पर्टिकुलर हाफ सेल की टेंडेंसी कितनी है, क्योंकि आपको ये पता है बेटा हर एक मेटल की अपनी अपनी टेंडेंसी होती है ऑक्सीडाइज होने की. Those metals which have a higher tendency to get oxidized means जो जिनको आप लोअर क्लासेस में पढ़ते आ रहे हो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, उस रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल एटम्स जितने टॉप पोजीशंस पे होते हैं, those atoms have a greater tendency to lose electron. means वो ही हाफ सेल, उनके हाफ सेल में हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, और वो मेटल जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है जिसको मेटल एक्टिविटी सीरीज भी कह सकते हैं, उसमें लोअर पोजीशंस पे आते हैं, उनमें हमेशा उन हाफ सेल में रिडक्शन होता है. तो ये अब आपको कैसे पता लगेगा, अगर आपको एक सेल दे दिया उसमें दो अलग अलग हाफ सेल्स गिवन है, आप कैसे असाइन करोगे कि किसका ऑक्सीडेशन होगा किसका रिडक्शन. तो उसके लिए हमें एक टर्म जो हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो मैंने आपको भी बताया. तो वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है हर एक इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी है कि वो ऑक्सीडाइज होगा या रिड्यूस होगा, और ये अकॉर्डिंग टू आयोपेक कन्वेंशन एक्चुअली हर एक इलेक्ट्रोड की रिड्यूस होने की टेंडेंसी को फाइंड आउट किया गया है. तो यहाँ पर अंडरलाइन कर सकते हो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू आयोपेक इज एक्चुअली रिडक्शन पोटेंशियल जितने भी हैं इलेक्ट्रोड्स के, मतलब उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रोड की रिड्यूस होने की कितनी है, दैट इज नेम्ड एज standard electrode potential and it is represented by the symbol E0. अब पहले एक मिनट आपको मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बता दूं, then we'll come to that cell EMF. अब इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम मेजर कैसे करेंगे, हर एक हाफ सेल की कितनी टेंडेंसी है ऑक्सीडाइज रिड्यूस होने की, और उसका एग्जैक्ट कितना पोटेंशियल डेवलप होता है. तो दैट इज मेजर्ड बाय यूजिंग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. ये जो इलेक्ट्रोड आप देख रहे हो, एक हाफ सेल है. इस हाफ सेल में एक्चुअली ये एक बीकर में 1 मोलर हाइड्रोजन आयंस का सॉल्यूशन है. इट मे बी HCl और इट मे बी सल्फ्यूरिक एसिड. एनी सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस कैन बी टेकन. और ये जो ग्लास ट्यूब आपको दिख रही है, इसके अंदर एक प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड लिया हुआ है. प्लैटिनम और गोल्ड जनरली ये इनर्ट जो मटेरियल है, दे आर यूज्ड इन ऑर्डर टू प्रिपेयर इलेक्ट्रोड्स. अगर आपका इलेक्ट्रोड पे जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो रहा है वो गैसियस फॉर्म में है, मींस इफ यू आर यूजिंग गैसियस सब्सटेंसेस, तो आप उस गैसेस को तो इलेक्ट्रोड में या रॉड में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो ना, जैसे कॉपर और जिंक के केस में हमने उन्हीं की रॉड्स बना ली थी. क्लियर. अगर आपने कोई ऐसा सब्सटेंस लिया है उस हाफ सेल में जिसको आप खुद एक इलेक्ट्रोड में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, तो उस केस में हम ऐसे मेटल्स यूज करते हैं जो मेटल्स इनर्ट है. इनर्ट मेटल मींस जो खुद रिएक्ट नहीं करेंगे उस पर्टिकुलर रिएक्शन के टाइम पे. तो यहाँ हमने प्लैटिनम यूज किया है. तो हियर फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम इज कोटेड ऑन दिस प्लैटिनम फॉयल, और इस पूरे रॉड को, प्लैटिनम की जो रॉड है इसके अंदर इसको एक ग्लास ट्यूब में प्लेस किया हुआ है, और ग्लास ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस को 1 बार प्रेशर, 1 बार इज द स्टैंडर्ड प्रेशर टेकन बाय IUPAC नाउअडेज. तो 1 बार पे हाइड्रोजन गैस को फ्लो कर रहे हैं हम इसके अंदर. तो इस इलेक्ट्रोड पे हाइड्रोजन गैस इज इन दी कांटेक्ट विद 1 मोलर हाइड्रोजन आयन सॉल्यूशन. तो इस हाफ सेल में जो रिएक्शन हो रहा है दैट इज हाइड्रोजन आयंस दे गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल. ठीक है. ये जो रिडक्शन पोटेंशियल है इसको हमने एज्यूम किया है इस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड के लिए 0. तो अब ये क्या है, दिस इज नोन एज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विच इज यूज्ड in order to calculate or determine the electrode potential of other half cells. बाकी की जितनी भी हाफ सेल्स हैं उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं बाय कनेक्टिंग ऑल दोज हाफ सेल्स विद, मतलब हाफ सेल हमने अभी ऊपर जो हमने डेनियल सेल देखा उसमें एक जिंक इलेक्ट्रोड लिया था, कॉपर इलेक्ट्रोड. अब सपोज हमें निकालना है कि जिंक इलेक्ट्रोड का अपना इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है. तो जिंक हाफ सेल को हम हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट कर देंगे, तो जितनी वोल्टेज आएगी, क्योंकि हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का एक जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एज्यूम किया है
किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए, दैट इज टेकन एज 0। और इसमें ये याद रखो, ये स्टैंडर्ड कंडीशन ली हुई है। ये आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब है, अगर इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्यूशन की बात हो रही है तो 1 मोलर होना चाहिए, वो स्टैंडर्ड कंडीशन में होगा। एंड इफ यू आर यूजिंग गैसेस एट इलेक्ट्रोड्स, देन दोज गैसेस मस्ट बी फिल्ड एट अ प्रेशर 1 बार। मतलब जो गैसेस का पार्शियल प्रेशर है वो 1 बार होना चाहिए अगर आप गैसियस इलेक्ट्रोड ले रहे हो। तो ये जो कंडीशंस हैं वो स्टैंडर्ड कंडीशंस होती हैं। एंड स्टैंडर्ड कंडीशंस में टेम्परेचर जनरली 298 केल्विन अज्यूम किया जाता है, रूम टेम्परेचर, या इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के अंदर। क्लियर? तो हियर यू विल कम टू नो कि व्हेन वी कनेक्ट एनी हाफ सेल विद दिस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है, तो उस टाइम पे जो वोल्ट मीटर पे रीडिंग आएगी, वो वोल्ट मीटर की रीडिंग आपको उस पर्टिकुलर हाफ सेल का पोटेंशियल की वैल्यू दे देगी, क्योंकि आपने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो एज्यूम किया हमने पोटेंशियल, वो 0 एज्यूम किया। ठीक है, तो वोल्ट मीटर पे जो वैल्यू मिलेगी, दैट विल गिव द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दैट पर्टिकुलर हाफ सेल। देन दिस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज टर्म्ड एज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। उसका शॉर्ट एब्रीवेटेड फॉर्म है SHE। तो इसको मतलब हमेशा यू कैन से एनोड पे रख के, और जो भी हाफ सेल हमने लिया उसको कैथोड अज्यूम करके हम ये कैलकुलेशंस करते हैं। एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग फ्रॉम दीज वैल्यूज, एक टेबल आपके पास आता है, ये टेबल